Hello, dear students. I welcome you all to the introductory lecture of Business Communication, Paper 1 for Semester 1. As you know that in FY BCom, that is in your first semester and also in the second semester, you have 7 papers in all. Of those 7 papers, one paper is Business Communication. From the title itself, from the subject name itself, you must have guessed what could be the syllabus, what you need to learn, what you need to study in this subject. Basically, this subject is about communication skills, the importance of communication in business, and what are the primary communication measures and means that is highly effective and useful for a businessman, for a business person, and to run a business. As you know that to be a good business person, or to be a good commerce student as well, and as well as if you want to improve your business, if you want to establish your business, and if you want to have a good job after your graduation, and if you want to get a good placement, or to be selected in some good interviews, to crack those interviews, you need to have a good command over the language, and that too not Urdu, Hindi, on any other regional languages. Basically, as you know that uh, the corporate world demands a good command over English language, right? At least you must have the skill of speaking, writing, and understanding English well. That is primary requirement and primary expectation of any corporate world. So, keeping that in mind, the university has drafted, the Board of Studies has drafted a kind of syllabus which will help you to a greater extent to have some basic knowledge about communication. It will also help you to understand the concepts, various channels, various methods, and various problems, listening skills, and all those things which are basically ingredients of communication skill. So, before we proceed further, let us see the syllabus roughly. The syllabus for first semester. In semester 1, your syllabus is it's a bit larger, a bit lengthier as compared to semester 2. Here you need to learn a lot about the concepts, a lot about objectives of communication, a lot about the methods that are used for communication, for good communication, and you will also come across various barriers or problems or issues that we all face during our day-to-day communication. Also, you will be taught on listening skills, how to improve your listening skill, how to be a good listener. Of course, I think and I believe that a good listener can only be a good speaker. You can't be only a speaker and not a good listener, because listening helps you a lot, helps you to improve a lot in order, it may be your language, it may be your grammatical skills, it may be your vocabulary whatsoever. So listening is a very important part, important means of communication. Okay, also apart from that, we will also go through some business ethics. Okay, all those things you will study in the first unit. There is also one second unit where we will see uh, business correspondence, like you all must have, you all have studied this already in your junior college and schools, but here we will see some technical writing, technical letter writing, that may be like your application letter, CV, biodata, and business correspondence like statement of purpose, yeah, letter of acceptance of job offer, letter of resignation, and many other, many are there. So we will one by one see all of them.
in the coming days, and in various lectures that we are going to see, that we are going to be engaged in. Okay, so before I start, how many of you, we all communicate, of course. There is no doubt that being a human being, being people with voice, people with language, people with knowledge of language, and people with the curiosity to have interaction and talks and discussions, we all communicate, I think, throughout the day. uh, Irrespective of the people you come across, it may be your it may be your friends, it may be your family members, it may be in anybody, it may be anything. You must have experienced a form of communication. Okay. Now, what is communication actually? How can you define communication? See, communications has various means. Of course, there are verbal communications, there are non-verbal communication, and various other means as well. But what is communication actually? If you define communication in a very simple sense and in very simple words, communication can be defined as the exchange of ideas, exchange of thoughts, exchange of views. जब हम किसी से बात करते हैं, जब अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बात या अपनी एक आइडिया को जब हम किसी से शेयर करते हैं, चाहे वो अपने हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, या आम तौर पर किसी से भी जब हम बात करते हैं, जब अपने बात हम एक्सचेंज करते हैं आपस में किसी और से, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं. ओके, एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज़, all those things can be considered as communication. Okay, so as I told you, communication, it's not like only human beings communicate. Even animals communicate. Animals, birds, even insects. Science has proved they have their own language. They communicate within themselves. एनिमल्स कम्युनिकेट, यानी कि जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं. ठीक है, जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बार्किंग ऑफ डॉग्स, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ साउंड दैट दोज एनिमल्स प्रोड्यूस, इवन द साउंड दैट वी प्रोड्यूस. जब हम बात करते हैं तो हम भी एक तरह का साउंड क्रिएट करते हैं, और उस साउंड के ज़रिए हम बात करते हैं. ठीक है, so any kind of living things, even there, some people also believe that even non-living things also communicate, but that's a very vague kind of area. We don't need to go into that area as of now. So, but communication is a basic need of every human. It's a kind of basic need. As we all know that, as I told you, like most of our time we spend in communication. चाहे वो एक दूसरे से बात करने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो. अगर हम कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक, या जो भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, या हम कुछ देखते हैं, टेलीविज़न, मूवीज़, जो को भी, तो उसे भी हम एक तरह का कम्युनिकेशन कह सकते हैं. ओके, तो लेकिन हम जैसे मैंने अभी कहा था कि सारे एनिमल्स, सारे जो भी लिविंग थिंग्स है वो बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बाकी एनिमल से, एनिमल किंगडम में वो बाकी सारे एनिमल से अलग है. क्यों है? क्योंकि हमारे पास हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज है, हाईली डेवलप्ड कम्युनिकेशन मीन्स है, हाईली डेवलप्ड कम्युनिकेशन नीड्स भी है, ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो है ये हम we are different from all other animals around us, maybe insects or maybe non, जो भी आसपास में है, जो भी बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं, उनसे हम अलग हैं, क्योंकि हमारे एक हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, आपस में चीज़ों को शेयर करने के लिए, बातों को शेयर करने के लिए. ठीक है, तो
जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होता गया हज़ारों सालों से, या उससे पहले से जो जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होता गया, तो वैसे वैसे लैंग्वेज डेवलप होते गए, उसके वर्ड्स, वोकेबलरीज, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और सारी चीज़ें डेवलप होते गए। और आप जानते हैं कि दुनिया में हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, thousands of languages are there in this world and many people, जैसे हम इंडिया के अगर एग्जांपल लें तो इंडिया में हम जानते हैं यहाँ पर भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। और हम एक हमारा एक खासियत ये है इंडियंस का कि हम मल्टीलिंगुअल हैं, स्पेशली क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं। और मतलब आई वोंट से कि 100% जानते हैं, बट फिर भी हम दो एक से ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल ले लें तो आप अपना जो मदर टंग है वो हिंदी या उर्दू या कोई भी एक लैंग्वेज होती है, और जिस लैंग्वेज में हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो एक लैंग्वेज अलग होती है। स्पेशली वो इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े वो इंग्लिश, या कोई और मीडियम से पढ़ते हैं तो वो। तो यूजुअली हम इंडियंस का ये खास बात ये है कि हम मल्टीलिंगुअल है, हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं। और ये एक स्पेशलिटी है जो आमतौर पर बाकी देशों के लोगों में नहीं दिखाई देता, कि ये जो स्पेशलिटी है वो हमारे यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन है जो हम इंडियंस को बाकी कंट्रीज़ के लोगों से अलग करता है। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट कि जैसा अगर कम्युनिकेशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज के ज़रिए ही नहीं इंसान करते, हम बिना लैंग्वेज के भी कम्युनिकेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जहाँ हम लैंग्वेज या साउंड का इस्तेमाल करते हैं उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, व्हेन यू कम्युनिकेट, when you talk with someone, communicate with someone, and if you use a language, that kind of communication can be called as verbal communication. And we also use non-verbal communication. What is non-verbal communication? जब हम एक्शन से, जेस्चर से या हंस के, स्माइल करके या रोते हुए अगर कुछ, या जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो भी एक तरह कम्युनिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, they don't know how to speak, they don't know language, they have not developed the speaking capability and ability, but still you must have observed that even those children make some kind of use some kind of communication, जो कि उनके माँ, ठीक है, या पिता या और जो उनके क्लोज होते हैं वो समझ पाते हैं। जैसे उनको जब भूख लगती है, जब उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो अपने ही अंदाज में वो कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो even that forms of communication can be considered as a kind of communication। ठीक है, जैसे हम देखेंगे जो सेंटिमेंटल जो होते हैं, बहुत सारा जो हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास अल्फाज नहीं रह जाता। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हम पेन में हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम खुश हैं या दुख हैं, तो यूजुअली वी आर अनेबल टू स्पीक। तो हमारे जो इमोशंस है वो हमारे चेहरे से, हमारे आँखों से, जो भी सामने होता है वो समझ पाता है। सो इवन दिस इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कई सारे तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ लैंग्वेज या सिर्फ आवाज़ से ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो इसलिए ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो इंसान के लिए एक एसेंशियल वस्तु है। ठीक है, और बिना कम्युनिकेशन का इंसान even they can't imagine to live properly. Life become very boring, useless to some extent. आप जानते हैं कि जब कोई क्राइम करता है तो उसको जेल में रखा जाता है कुछ समय के लिए, वो अपने परिवार से, समाज से, लोगों से दूर उसको रखा जाता है, जिसे हम एक्स कम्युनिकेट करना बोलते हैं, ताकि वो तब अगर उनको ये एहसास होता होगा कि जैसे वो अपने
इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने बातों को शेयर करने के लिए उनके साथ कोई है नहीं जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. सो एट दैट टाइम दे फील that somewhere somehow communication with people, communication with family members, communication with our loved ones is very important. ठीक है, तो वो एक्चुअली तरसते हैं कि कब मौका मिले बात करने वगैरह. हाँ, आप भी देखे होंगे, जो आप सब ने भी किए होंगे बचपन में, जब हम हमारे किसी से बचपन में हम झगड़ा करते हैं, हम या इस तरह छोटी मोटी कोई बात पे हम बात करना बंद कर देते हैं, या आपके ग्रुप में से किसी को किसी से बात करना बंद कर देंगे, या जिसे हम आम लैंग्वेज में कट्टी होना भी बोलते हैं, कि ये कुछ समय तक उसको बात नहीं करते. तो आप देखेंगे कि उसका जो द बिहेवियर अलग हो जाता है. लाइक दैट पर्सन, योर फ्रेंड और होम सेवर दैट मे बी, दैट पर्सन ऑलवेज ट्राई टू कम नियर यू, बात करने की कोशिश करेगा, माफ़ी मांगेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा, वट एवर. सो दैट मीन्स दैट कि no matter whether you are a child or an elder person, but communication is necessary. You can't stay for long without being without communication. ठीक है, कम्युनिकेशन के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आम तौर पर, किसी भी इंसान के लिए, तो and that is the main reason why we have created, we have developed lot of various means of communication. ठीक है, अब आपके घर से कोई बहुत दूर है, बाहर देश में है, तो उनसे पहले एक 20 साल पहले की बात करें तो जब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं था, व्हाट्सएप या वीडियो कॉल वगैरह इतना नहीं था ही नहीं, तो ट्रंक कॉल या STD या ISD के ज़रिए कभी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बात होती थी. ठीक है, तो ये जब टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुआ, तो हमने बहुत सारे मीन्स को भी डेवलप किए कम्युनिकेशन के लिए. आज शायद ही कोई होगा हमारे भी जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता हो, शायद ही कोई होगा जो व्हाट्सएप पे नहीं हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई और ऐसा सोशल मीडिया हम जो यूज़ नहीं करता हो. इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी या हम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न होते गए, we have also evolved, developed and discovered various means of communication. Now it has become very easy for all of us to communicate with anybody, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो. हम देख के अपने मोबाइल स्क्रीन पे उस इंसान से डायरेक्टली, एक तरह का डायरेक्टली वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं, या नॉर्मल कॉल की तरह के ज़रिए बात कर सकते हैं. सो currently communication has become a very easy way, very easy. There are various means of communication. We have actually invented, discovered and developed a lot of ways of communication. ठीक है, so क्या हम ये बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक नई चीज़ है? नो, वी ऑल नो दैट इन द ओल्ड टाइम इटसेल्फ, जब लैंग्वेज के डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था, तभी भी हम इंसान कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे. लेकिन उस समय हम इंसान क्या करते थे, सिंबल के ज़रिए, साइन के ज़रिए, साउंड के ज़रिए, या और भी कई अलग अलग तरीके से वो बात करते थे. जैसे वी ऑल नो दैट जब जो हिस्टोरिकल जो डिस्कवरीज है, कई सारे जो डिस्कवरीज हुए हैं हिस्टोरिकल, तो वहाँ पर केव्स के अंदर या जंगलों में या स्पेशली केव्स के अंदर कई सारे पेंटिंग्स, कई सारे ऐसे मार्कर्स मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इंसान हमेशा से कोई ना कोई ज़रिया ढूंढा है, कोई ना कोई तरीका ढूंढा है, या कोई ना कोई तरीका अपनाया है कम्युनिकेट करने के लिए. सो दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट ह्यूमन बींग्स कैनॉट रिमेन विदाउट कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग. ओके, so let us come to some important definitions, important concepts of communication. Okay, so we will see now what is what is the actual meaning of the word communication, and where it has actually originated and all those things. Okay, so the word communication
the English word communication has it has came from the Latin word communicare, जिसका मतलब है टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट। लैटिन कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को या एक ज़रिया जिससे हम कुछ इम्पार्ट करते हैं, मतलब भेज एक्सचेंज करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ ट्रांसमिट करते हैं। सो कम्युनिकेयर का ये सारे मीनिंग है लैटिन में, और इसी वर्ड से कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हुआ, ओरिजिनेट हुआ है। ओके, द वर्ड कम्युनिकेयर इज डिराइव फ्रॉम द रूट कम्युनिस विच मीन्स टू मेक कॉमन और टू शेयर। ओके, समथिंग, एनीथिंग दैट वी मेक, make common or we share, uh, you know all those can be considered as communication. Okay, so what is communication? Communication is an activity or process of sharing or exchanging ideas, feelings, information, experience between two or more persons. मतलब व्हाट इज़ कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ हम आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस को या कोई भी अलग तरह के जो इमोशंस को जब हम शेयर करते हैं, एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ जब शेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, नाउ देर आर वेरियस वे ऑफ ट्रांसमिटिंग। जो डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है कम्युनिकेशन, जो हम डायरेक्ट फेस टू फेस करते हैं, कभी कभी हम इनडायरेक्टली करते हैं। फेस टू फेस मतलब जब आप और जिससे आप बात कर रहे हैं वो आमने सामने हैं, एक साथ में हैं। जो डिस्टेंट फॉर्म कम्युनिकेशन है, जैसे जो फेस टू फेस नहीं है, कि जैसे वो व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट नियर यू, हु इज़ नॉट नेक्स्ट टू यू, जो आपसे दूर होते हैं, जिससे हम फ़ोन के ज़रिए या कोई और चीज़ के ज़रिए बात करते हैं। तो ऑल दिस वे, ऑल दिस you can say means are specially we use to keep in touch and to establish communication. Okay, now you know that defining communication is not an easy job. There is no specific definition which we can give for communication. जैसे इससे पहले हम देखे थे कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस और व्हाट्सएवर, it is a communication, but there is no specific definition which we can give to the process of communication or to communication. Now it is very controversial and very much questionable that communication art है या साइंस है और एक स्किल है, but it's not very easy to define. It may be scientific process, it may be artistic process, and it may also be a skill based process. सब में ये सब में वो बैठता है, तो it is not very easy to define communication. But still, if you go to the dictionary, so Oxford Dictionary defines communication as the action of conveying or exchanging information and ideas. ऐसा एक्शन जिससे हम इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, यानी कि बताते हैं, देते हैं या एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो इसी तरह से कई सारे डेफिनेशंस, कई सारे जो थियोरिस्ट है, जो कम्युनिकेशन में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने दिए हैं, but there is no definite definition which you can actually fix about the meaning or the concept of communication. So it is vague, it has multiple meanings, so it is not easy at all for we to actually give a specific definition to it. So now we will see what is business communication and why communication is very much essential for a business person. और किसी भी तरह का बिजनेस में हो, चाहे वो प्रोफेशनल आपका प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल अगर आपको प्रैक्टिस है
या आपका बिजनेस है, तो एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट, एनी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी दैट वी एंगेज इन, हम जो एंगेज कर होते हैं या हम एंगेज होते हैं या होंगे फ्यूचर में, उसमें कम्युनिकेशन का एक बहुत 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 बड़ा रोल है. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट स्मॉल और बिग, communication plays a very important role, because we know that business is exchange, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सचेंज हो, कमर्शियल या कमोडिटीज़ या वट एवर. सो टू हैव अ गुड बिजनेस स्किल, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए कम्युनिकेशन का अच्छा जानकारी होना ज़रूरी है. जैसे कि अगर आपको किसी क्लाइंट को कन्विंस करना है, अगर आपको किसी कस्टमर को कन्विंस करना है, आपके चीज़ अगर किसी से ख़रीदवाना है, या आपका बिज़नेस अगर आपका जो भी है, क्लाइंट है, कस्टमर है, या आपकी जो पार्टी है, उसका अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको वो आपके अंदर वो बात करने की स्किल, एबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. ये अलग बात है कि अगर हम लोकल जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस या एमएनसी वगैरह अगर उस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एक अच्छी समझ हो इंग्लिश लैंग्वेज की. जैसे हम जानते हैं, यूजुअली आप किसी भी अच्छे जो बड़े कंपनी की जो इंटरव्यू के लिए आप अपीयर करते हैं, तो उसमें वो ये देखते हैं कि आपके अंदर लैंग्वेज स्किल कैसी है, कितनी है, और आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल कितनी है. लाइक आप बिज़नेस के लिए, या आप किसी को कन्विंस करना आपको आता है, बात करना आपको आता है, आपकी लैंग्वेज कितनी पॉलिश्ड है, आप कितने तरीके से, कितने सलीके से बात करते हैं. एवरीथिंग दे स्टडी अबाउट यू, then only and only after that you are appointed. Okay, that's why it is highly important that you must have good communication skill. अब चाहे वो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में काम कर रहे हैं, दोनों में आपका कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं, तो आपको कई लोगों से मिलना है, चाहे वो क्लाइंट हो, कस्टमर्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पॉलिटिशियंस हो, लीगल ऑफिशियल्स हो, हर किसी से आपका सामना होगा. या आपके एम्प्लॉयज़ से भी ऑफकोर्स रोज़ सामना होगा. तो उन सब से आपको किस तरह से बात करना है, ये आपको आना चाहिए. ओके. आपको कब, आपका टोन कैसा होना चाहिए. जैसे अगर अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है, तो आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे. थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अनलेस यू नो हाउ टू ट्रीट पीपल वेल, हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू talk with them properly. So unless you have all these skills, it's difficult for any businessman to establish and improve his business or her business, of course. ओके. तो बिज़नेस ही नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, सपोज़ कि अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी में अगर आपको अपॉइंट किया गया है, किसी इंटरव्यू के ज़रिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो वहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आपका जॉब है, यानी कि आपके अंडर में और भी एम्प्लॉयज़ है जिसको आपको कंट्रोल करना है, जैसे कि टीम लीडर होता है, मैनेजर होता है, उन्हें कई सारे लोगों को कंट्रोल करना होता है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम, what you need to do, what kind of skill you need to have, and how you treat them, how you control them. आप उनको किस तरह से एडवाइस देते हैं, किस तरह से उनसे काम निकालते हैं, किस तरह से बात करते हैं, आप फ्रेंडली रहते हैं या वॉट एवर. सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए भी कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. Okay, it's not like when you are into business only, then only you need to have good language, then only you need to communicate. No, it's not like that. Even if you are in an administrative post, तो वहाँ पर भी आपका कम्युनिकेशन होना ज़रूरी. क्योंकि आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अगर आप बैठे हैं, तो
आप कहीं ना कहीं उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और आप भी उस कंपनी के बिजनेस का एक पार्ट है, एक आप हिस्सा है। ओके, तो वहाँ पर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, फॉर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंपनी, you need to have all those skills which are important for an employee, for an administrator. That's why usually good communication skill is expected from an administrator. Okay, so you know, एक अच्छा एम्प्लॉय या अच्छे एक बिजनेस के लिए या अच्छा एक बिजनेसमैन बनने के लिए, ठीक है, आपके अंदर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन देना, एक्सचेंज का, आइडियाज़ को रिस्पॉन्स देना, ठीक है, क्वेश्चंस का सही जवाब देना, सही से शेयर करना, आपके इंटरेक्शंस को सही रखना, ये सारी चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है टू बी ए गुड बिजनेसमैन एंड ऑल्सो टू बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर और गुड एम्प्लॉय. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि इट हैपन समटाइम. देर आर सम पीपल who may be good in speaking but not good in writing. There are some people who may be good in writing but not good in speaking. So there should be balance. If you want to have a good prospect and good job and good corporate life in future या अच्छा बिजनेस है तो आपको एक बैलेंस होना चाहिए. You must have the quality and ability to speak as well as to write well. Okay, so this is something that is always expected of a good businessman and also from a good employee. Okay, so that's why I've told you that you need to improve your language, your writing skills, your speaking skill, and all those skills which are important for to become a successful businessman, or also to become a good employee, or to be able to get selected for a good post after your graduation or in your future. Okay, so this is the brief introduction about the communication, business communication, and some basic concepts about the communication. Okay, so in the next class we will see the process of communication, the elements of communication, the basic elements of communication, and what are the basic needs, what are the basic elements that helps to establish a good communication process. This we will see in the next class. Okay, that's all for this class.